we started. Okay, so let's start. So this is what we've done so far. Now today we'll start off with the second portion where we need to find out the activity rates. अब ये activity rates क्या है? ये असल में वो PHR है, वो जो हमने पहले PHR पढ़ा था. Which means we need to divide the overhead by the activity. Now in the first step we found out the overheads, the total of the overheads, which is given over here. So 320,000 for customer orders, 252,000 for product design और इसी तरह सबके overheads. Total इसका 1,010,000 था, जो हम लोगों ने वहाँ पे पहले देख चुके. अब activities हमारे पास 5 activities थी, उसका हमें information चाहिए होगा, which will obviously be given to you in the question, exam में या book में जो भी है वो आपको given होगा. In real world, you will have to go and dig for that information. आपको you will have to look for it. आपने देखना होगा कि customer orders total कितने आए, because that is a cost driver for one of these activities जो हमने यहाँ पे लिखी. तो उसके लिए आपको ये चीज देखनी पड़ेगी. Then for the second one, new designs कितने बने थे आपको वो देखना पड़ेगा. If you remember this example, ये example ये थी कि हम लोग एक organization थी Classic Brass, ठीक है, और उसकी different activities हम लोगों ने देखी थी और हमने उसका cost pools बना ली. So we had 5 different cost pools over here, जिसमें से एक cost pool हमने कहा redundant है because that was others, और हमने कहा others का कोई cost driver नहीं बन सकता, ठीक? So actually we have 4 cost pools, 1, 2, 3, 4. Let's say we have 4 cost pools. So for the first one we have 1,000 customer orders. We have 1,000 customer orders. So this will be divided by 1,000. The second one is 400 new designs, so it will be divided by 400. 20,000 machine hours, 20,000, and last one was 250 customer relation activities. Now let's go back to the data again. उसी grid पे वापस जाएं. Okay, so this is what it says. 320,000 for customer orders. और इसका जो cost driver था, वो था number of customer orders. अभी हमने देखा कि number of customer orders कितने? 1,000. 1,000. Can you see my writing on the board? Yes. ठीक, 1,000. So what we need to do? 320,000 divided by 1,000. It will give me 320. Okay, per customer order. ठीक है. अब एक कस्टमर ऑर्डर पे 320 रुपए खर्चा आता है ओवरहेड्स का. अब ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मुझे पता चल गई कि अगर एक कस्टमर ऑर्डर में जितने भी खर्चे हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन ओवरहेड्स के, नॉट डायरेक्ट मटेरियल, नॉट डायरेक्ट लेबर एंड नॉट शिपिंग कॉस्ट, इसमें ये 3 डायरेक्ट है. इसके अलावा 320 रुपए आता है इस चीज पर कि एक बंदा ऑर्डर ले किसी एक कस्टमर से और उसको प्रोसेस के लिए भिजवाए, इस पे 320 रुपए आते हैं. Let's move on. Product design 252,000, and how many product designs we had? 400. So 252,000 divided by 400. This will give me expenses, which will be 630 per product design. एक product design पर 630 rupees का खर्चा आता है. Let's move on. Order size 380,000, and we used to, and the cost driver for that was number of order size, number of machine hours 20,000. So 380,000 divided by 20,000 will give me 19 per machine hour. एक मशीन आवर, जब मशीन एक चलती है 1 घंटा, तो उसके ऊपर 19 रुपए खर्चा आता है ओवरहेड्स का. ठीक है. Okay. The last one was customer relations, 367,500 divided by 250. This will give me G. What's the figure? 367,500 divided by 250. 1470 per customer. ठीक है. उसने वर्ड यूज किया है एक्टिव कस्टमर का, इफ यू रिमेंबर. ठीक है, एक्टिव कस्टमर. पुराने कस्टमर्स आपको कॉल नहीं करेंगे, जो आपसे ले रहे हैं चीजें अभी वही आपको कॉल करेंगे ना, किसी न किसी चीज के लिए. ठीक है. सो कस्टमर रिलेशन 1470 पर कस्टमर. सो नाउ वी हैव गॉट सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. अब इसको आगे फर्दर इस्तेमाल करना है. ये इधर कुछ खास काम नहीं दे रहा,
कुछ थोड़ा बहुत बता रहा है मुझे कि इसका क्या काम है, बट एक्चुअली आई विल बी यूजिंग इट फॉर प्रोडक्ट कॉस्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, फिर शायद मैं प्रॉफिट्स अपने फाइंड आउट करना चाहूँ, और फिर बहुत सारे काम है जो यहाँ पर हम करेंगे जहाँ पर इसको इस्तेमाल करेंगे. सो कंप्यूटर एक्टिविटी रेट्स फॉर कॉस्ट पूल्स, दिस इज योर data, and we've used this data to calculate the POHR. लेकिन यहाँ पे इसको एक्टिविटी रेट्स बोलेंगे, POHR नहीं बोलेंगे, ठीक है. Now the team can compute the individual activity rates by dividing the total cost for each activity by the total activity levels. Total cost, total activity. ये फॉर्मूला हो गया, वही POHR, उसको हमने यूज किया है, हमने इसे फाइंड आउट कर लिया. Let's see if we've done it right or not. So customer orders 320. Okay, product design 630, order size 19 and 1470. Done? Clear? आसान है, मुश्किल नहीं है. अब फिर आपको बता, आसान है, लेकिन जो सबसे पहला काम किया था ये ग्रेड वाला, अगर इसमें आपने गलती कर दी तो सब गलत हो जाएगा, सब पूरा क्वेश्चन, इसके बाद सभी, इसके बाद और बहुत सारी चीजें हम इसमें करेंगे, सब गलत हो जाएगा. ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है. और अगर एक गलती शुरू में कर ली तो सब गलत हो जाएगा. सो काइंडली बहुत आराम से करना है इसको, मतलब आराम से नहीं कि आप एक एक काम करें, जस्ट डू इट, बट मेक श्योर यू नो हाउ टू यूज कैलकुलेटर और उसको जल्दी इस्तेमाल कर सकें और गलतियां ना करें. जी सर, ये रेट्स हमारे पास है, इनका POHR को नहीं कह सकते. नहीं, POHR कह नहीं सकते, मैंने कहा कॉन्सेप्ट सेम है. कॉन्सेप्ट वही है कि कॉस्ट डिवाइड बाय एक्टिविटी, तो हम इसको बोलते हैं एक्टिविटी रेट्स. डिफरेंट एक्टिविटीज है ना, इनके रेट्स के. जी सलमान क्वेश्चन. स्टेप्स के मार्क्स अगर मैं फिर कहूंगा अगर कोई डांस कंपटीशन होता तो हर स्टेप का अलग अलग मार्क्स मिलता, लेकिन आई एम वेरी सॉरी. और आपको तो पता है कि मेरे एग्जाम में सारा क्वेश्चन 1 मार्क है ना, तो 1 मार्क में से मैं क्या आधा मार्क दूं. अगर इन केस द होल क्लास इज नॉट डूइंग गुड, ठीक है, एंड इट्स अ कलेक्टिव प्रॉब्लम कि किसी ने कोई एक जगह पे गलती कर दी, किसी ने किसी और जगह पे गलती कर ली, लेकिन सब कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, एंड समहाउ दैट गलती मिस्टेक इज बीइंग कैरिड फॉरवर्ड टिल द एंड, तो फिर मुझे शायद थोड़ा सा, हाँ, फिर मैं शायद हाफ, हाँ, जितना अच्छा तुम उतना अच्छा. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. नाउ लेट मी रिमाइंड यू अगेन, these 3 costs were direct cost in this question. Otherwise, in any other question, the direct cost would actually be 2 direct material and direct labor. इसकी allocation नहीं हो रही, ये directly product में जा रही है. अगर directly product में जा रही है तो इसका मतलब है कि इसको allocation की जरूरत नहीं. Indirect cost की allocation करनी है. Okay? So direct material, direct labor, shipping cost can be directly traced into the product. Cost objects, it can be a product, it can be a customer order, it can be customer anything. Whereas overhead costs cannot be traced. So for overhead costs, we will be needing activity based costing. ठीक है? Overhead cost के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे activity based costing. अब जब activity based costing इस्तेमाल करेंगे तो हमें activities बनानी पड़ेगी. पहले हमने कहा 5 levels of activities, 5 levels हो गए. फिर हमने एक्टिविटी जब एक दफा बना ली, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट स्टेज एलोकेशन. इसके बाद सेकंड स्टेप और द सेकंड स्टेज एलोकेशन वाज फाइंडिंग आउट दिस एक्टिविटी रेट्स, POHR एक किस्म, वो फाइंड आउट कर लिया और अब इसको आराम से मैं प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर ऐड कर सकता हूं. ठीक है, अभी करते हैं. प्रोडक्ट में भी ऐड करते हैं, कस्टमर ऑर्डर में भी ऐड करते हैं, कस्टमर्स को भी ऐड करते हैं और देखते हैं कि ये सब चीजें किस तरह पॉसिबल है. ये अब तक जो हमने किया फर्स्ट स्टेज एलोकेशन, सेकंड स्टेज एलोकेशन, ये दिस इज एक्चुअली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. हमने ये कर लिया. अब इस कॉस्टिंग की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करेंगे कि कहां-कहां पर ये इस्तेमाल हो सकता है. ओके, असाइन कॉस्ट टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट यूजिंग अ सेकंड स्टेज एलोकेशन. अब ये कॉस्ट किसी को एलोकेट करनी है. ओके, लेट्स डू इट. असाइनिंग ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट कॉस्ट को फाइंड आउट करें. ठीक है, अब प्रोडक्ट कॉस्ट में याद रखिएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, शिपिंग डायरेक्टली आ जाएंगे, वो 3 तो आ जाते हैं. हमें मसला है इन ओवरहेड्स का, जो भी हमने कैलकुलेशन. इन ओवरहेड्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस प्रोडक्ट में कितना ओवरहेड जा रहा है और उसके मुताबिक मैं इसको एलोकेट करूं. अब आपको अगर याद हो इस स्टेप के बाद व्हाट यू यूज्ड टू डू आफ्टर POHR,
after finding P or char, Multiply. multiply with the actual activity. So this is the case over here. Simple. You will multiply your activity rates with the actual activity, and this will give you. यहाँ पे हमें applied FOH देता था और यहाँ पे हम लोग कहेंगे वहाँ पे उसकी cost देते हैं. ठीक है? That's your key. So now classic process information. Standard extension and custom campus housing. दो किस्म की different चीजें वो आपको बता रहा है. आपको पता है कि it's assigning overhead cost to products. So these must be the two products which we have. Classic process के अंदर दो product line है. एक है standard extensions और एक है custom campus housing. देखते हैं हम इसको. Standard extensions requires no new design resource. इसके ऊपर कोई भी डिजाइन का रिसोर्स इस्तेमाल नहीं होता. डिजाइन की कॉस्ट इधर किधर है? 630. Product design. So that means 630 multiplied by 0. 630 multiplied by 0. Product design इसमें कोई नहीं. Okay, done. Second, 30,000 units ordered. 30,000 units पूरे साल में या आपको जो भी टाइम फ्रेम दे रहा है उसमें 30,000 units ordered with 600 separate orders. 600 ऑर्डर थे. एक ऑर्डर में किसी ने कहा 10 दो, एक ऑर्डर में किसी ने कहा 100 यूनिट दो, एक ऑर्डर में किसी ने कहा 5 यूनिट दो. तो टोटल 600 मेरे पास ऑर्डर आए और उन सब का टोटल मिलाकर 30,000 यूनिट मैंने ऑर्डर मेरे पास आए. ऑर्डर ओके, कहां पे इस्तेमाल हो सकता है? कस्टमर ऑर्डर 320 पर कस्टमर ऑर्डर. तो ऑर्डर्स कितने थे? 600. ओके, सो 320 मल्टीप्लाई बाय 600. जी, 192. ये किसका फोन नंबर है? इब्राहिम किसका? यूनिट. तो ये क्या है? कस्टमर ऑर्डर. तो क्या है? 192,000. 192,000. आगे ओके. Third, each station requires 35 minutes of machine time for 35 minutes of machine time. कहाँ पर है? मिनट पर आवर. 19 पर machine hours. और ऊपर क्या है? minutes. तो फिर कैसे कन्वर्ट करूँगा? मिनट्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं? डिवाइड बाय 60. एक प्रोडक्ट आ जाएगा. और टोटल कितने थे? 30,000 थे. सो 30,000 से मल्टीप्लाई करें. 1050,000 आता है तो उसको डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 17. सर मिनट्स है ना. एक मिनट ऐसा पहले 35 को कन्वर्ट करो. लेट्स कर लो. सो व्हेन वी कन्वर्ट 35 into minutes it will be equal to this price. 35 पैसे. ये क्लियर हो गया? ये आवर्स आता है आपके पास. ये आवर्स इस्तेमाल होते हैं एक के ऊपर. टोटल कितने यूनिट से? 30,000. अच्छा, मल्टीप्लाई 332,000. सर हम ऐसे क्यों नहीं करते? 35 को मल्टीप्लाई बाय 30,000 कर लें, आपके पास मिनट्स आ जाएंगे. 60 to divide. बिल्कुल सही है. हाँ, क्या आ रहा है? 17,500. 70,000. ठीक है? इंफॉर्मेशन इज गिवन. सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज गिवन. नाउ इन माय एग्जाम यू नो कि मैं सारी चीजें तो नहीं दूंगा ना आपको. मैं इतना अच्छा तो नहीं हूं. ठीक है? तो मैं क्या करूंगा? अब गौर से सुनने क्लास साथ साथ गौर से सुने सारे. मैं आपको साथ साथ जो एग्जाम में कैच आ रहे हैं सब आपको बता रहा हूं. गौर से सुनो. पहली स्टेटमेंट को देखिए आप. टिल हियर ऑफ मशीन टाइम. यहां इसको ब्रेक कर देना. फिर इसको हटा दें. अगर मैं आपको ये 17,500 ना दूं और आपको सिर्फ इतना बताऊं कि एक प्रोडक्ट के ऊपर 35 मिनट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, सो कैन यू फाइंड आउट कि टोटल कितने मिनट्स या कितने आवर्स इस्तेमाल हुए? कैसे करेंगे? पहले इसको कन्वर्ट कर दें. ठीक है? आवर्स के अंदर. फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ जो कि हैं 30,000. या अगर हंसला का काम करें वो हंसला कहता नहीं, पहले इसको 30 से मल्टीप्लाई करें और फिर डिवाइड बाय 60 करें. बात एक बार. ठीक है? ये आ गया मेरे पास टाइम. इस टाइम को मल्टीप्लाई करना है विद 19. So when we multiply it with 19, this gives me right 332,000. 332,500. ठीक है? Clear so far? Clear so far? Okay. सर ये लास्ट वाला क्या किया? लास्ट वाला क्या किया?
देखें हमने पहले टाइम फाइंड आउट किया, फिर उस टाइम को मल्टीप्लाई किया जो उसका एक्टिविटी रेट था। टाइम का एक्टिविटी रेट था 19 पर मशीन आवर। पहले मैंने मशीन आवर्स फाइंड आउट किए जो ये निकल आए, जो कितने बन रहे थे ये 17,500। इसको मल्टीप्लाई कर दिया विद 19, सो आई गॉट दी कॉस्ट फॉर मशीन आवर्स कि मशीन आवर्स के ऊपर कितनी कॉस्ट मेरी आई। ठीक है, क्लियर है? यहां तक आगे जाएं। एनीथिंग एल्स इन दिस प्रोडक्ट? अभी तक सिर्फ 3 चीजें हुई है, 2 चीजें रह गई। कौन कौन सी 2 चीजें रह गई? कस्टमर रिलेशन। सर ये 600 कस्टमर ऑर्डर में नहीं आएगा। 600 कस्टमर ऑर्डर में नहीं आएगा। 600 क्या चीज थी? कस्टमर ऑर्डर पे ऑर्डर में नहीं है, तो कस्टमर ऑर्डर में है ना। ये है यार है। ओके जी, अच्छा जी क्लास, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया। इसको देखो 1470 पर कस्टमर, ठीक है, पर कस्टमर। अब ये यहां पर आर वी टॉकिंग अबाउट कस्टमर्स ओवर हियर? नहीं ना, तो इसका मतलब ये यहां पर इस्तेमाल नहीं होगा। फिफ्थ वन क्या था? अदर, वो भी इस्तेमाल नहीं होगा। सो 3 रेट्स इस्तेमाल होंगे, उन 3 में से भी एक जीरो, क्योंकि कोई भी इसमें प्रोडक्ट डिजाइन नहीं था। सो द टोटल कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड ऑन दिस प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एक्सटेंशंस इज टोटल कॉस्ट 5252। ये मेरे किसका फोन नंबर है? 091 के साथ, 0300 के साथ, और है किसका? इब्राहिम। इब्राहिम। ओके 524 524,500 ठीक है। ओके 524,500 फॉर स्टैंडर्ड एक्सटेंशन। क्लियर है? Let's move on. Next one. Custom campus housing requires new design resources. What does that mean? Design cost है इसके अंदर design cost है। So let's try it. कि design cost यहाँ पर है, और design cost एक डिजाइन की कितनी कॉस्ट है? एक डिजाइन की 630 है। कितने डिजाइन है अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। So let's move on. 400 separate orders. 400 separate orders जी, 400 separate orders। ये कहां पर है? इसमें से कौन सी चीज है? 1470 That is per customer, not order. Customer order कहां पर है इसमें? 400 ये ऑर्डर साइज 320। Okay, so 320 multiplied by 4 जी, give me the figure 128,000 जी। Is this clear? Yes. नहीं? सिंपल है बस। हमने क्या किया? हमने उसने हमें कहा कि 400 ऑर्डर्स हैं और एक ऑर्डर पे कितनी कॉस्ट आती है पर कस्टमर ऑर्डर? 320। सो 320 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, ऊपर उसने कहा था कि टोटल 600 ऑर्डर्स है, तो मैंने 600 से मल्टीप्लाई किया 320। यहां पे 400 है 400। ठीक है, दो अलग-अलग ऑर्डर, दो अलग-अलग ऑर्डर्स कहां पे? ये मैंने 660 मल्टीप्लाई किया 460 देखें पहले 600 से मल्टीप्लाई किया, वो इस प्रोडक्ट के बारे में था। इस प्रोडक्ट के मुझे 600 ऑर्डर थे, ये मेरा दूसरा प्रोडक्ट है, इसके 400 ऑर्डर। हाँ तो 2 प्रोडक्ट्स है मेरे। पहले मैंने पहले प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट फाइंड आउट कर दिया, अब दूसरे प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट फाइंड आउट जी। क्लास क्लियर सो फार? जी सुलेमान इन प्रोडक्ट क्लियर? ओके लेट्स मूव ऑन। सेपरेट ऑर्डर्स भी हो गया। 30,000 यूनिट्स ऑर्डर 30,000 यूनिट्स ऑर्डर विद 600 सेपरेट ऑर्डर्स। ये पिछले प्रोडक्ट का था, ठीक है। उसमें उसने कहा था कि 30,000 यूनिट्स मैंने ऑर्डर आए, और जो ऑर्डर्स आए हैं वो 600 ऑर्डर। मतलब एक ऑर्डर मुझे किया हसन ने, एक ऑर्डर मुझे किया आबिद ने, एक ऑर्डर किया फारूक ने, ठीक है। और फारूक ने कहा 5,000 यूनिट, तो 5,000 यूनिट्स हो गए। फिर इन सब ऑर्डर्स को मिलाकर 30,000 यूनिट्स का ऑर्डर आया है, और ऑर्डर्स जो मेरे पास आए थे वो 600 आए थे, लेकिन उस प्रोडक्ट के। नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब यहां पर आ जाए, दिस इज अनदर प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के 400 ऑर्डर्स हैं, और अभी यूनिट्स देखता हूं नीचे कितने यूनिट्स अभी तक मैं नहीं पहुंचा। सर हमारे पास इस क्वेश्चन में जो ओवरहेड्स हैं वो दोनों प्रोडक्ट्स के लिए सेम है, ऐसा सोचते हैं ओवरहेड्स डिफरेंट हो। देखें
ओवरहेड तो ऑर्गेनाइजेशन में इनकर हो रहे हैं ना एज अ होल। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं ये देखूं कि ये ओवरहेड्स इस प्रोडक्ट पे कितने लग रहे हैं। लेट्स से मार्कर और मोबाइल में दो चीजें बनाता हूं, तो मार्कर पे कितने लग रहे हैं और इस पे कितने लग रहे हैं, ये कर लो। ठीक, ओके जी। 400 सेपरेट ऑर्डर्स डन, 400 कस्टम डिजाइन्स आ गए कस्टम। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 252,000 ये भी हो गया, ये भी हो गया, जाए आगे। 1250 कैंपस हाउसिंग्स प्रोड्यूस्ड, 1250 आपने यूनिट बनाए, रिक्वायरिंग 2 मशीन आवर्स ईच, और एक ऊपर कितने मशीन आवर लगता है 2, और 1250 यूनिट थे तो टोटल मशीन आवर्स कितने हो गए 2500। ये भी गिवन, ठीक है, ये भी गिवन है। अब अगर एग्जाम में मैं आपको दे रहा हूं तो शायद मैं आपको ये वाली लाइन ना लिखूं, ईच यहां तक दे दूंगा, ये लिखूंगा, तो आप खुद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1250 को 2 के साथ, तो आपको पता चल जाएगा टोटल 25। ठीक है, गॉट द आइडिया? Yes. ठीक, ओके। सो 1250 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 90, 47,500। अच्छा, दो चीजें फिर रह गई यहां पर, तीन हो गए ना, 5 एक्टिविटी यहां पे कॉस्ट पूछ है ना। चौथी एक्टिविटी इज कस्टमर रिलेशन, वो यहां पर नहीं है, और अदर्स वो भी। ऐड देम अप, हां बस ऐड कर, ये टोटल ओवर 437,000 427. 427,500। चेक कर लें, आंसर हमारे सही आ रहे हैं, आपने गलती की है। 524,500, दैट्स गुड। 427,500, दैट्स गुड। ठीक है, अब एग्जाम में क्या होगा, अब आपको फर्दर थोड़ा सा पेपर्स का, इस बार पेपर्स में क्या होगा। लास्ट टाइम अराउंड आपको बताया हमारे पेपर होते हैं, अच्छे खासे बुकलेट होती है बड़ी पूरी 8-10 पेजेस की, हाँ माशाल्लाह, लेकिन अब उसके ऊपर बैन है किया, अब 2 या 3 पेज से ज्यादा मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, इंस्टीट्यूट वालों ने कहा कि तुम पेज बहुत जाया करते हो, ग्राफ काटने पड़ते हैं हमें बहुत सारे, तो इस वजह से थोड़ा सा पेजेस कम कर, तो हमने उसका एक और तरीका निकाला, हमने कहा हम तो आदत से मजबूर हैं, हम ज्यादा एमसीक्यूज को कम नहीं कर सकते, सो व्हाट वी हैव डन इज नाउ हमने इसको आधा कर लिया। ठीक है, so that means now your paper has 2 columns, so now you will get your question here and then the MCQs here। अब देखिए, पहले MCQ जब इधर होता था तो उसके बाद इतनी बड़ी जगह होती थी वर्किंग के लिए, तो अब इतनी बड़ी जगह नहीं होगी, अब ये छोटी सी जगह होगी, क्योंकि इधर दूसरा MCQ स्टार्ट, तो हाँ यस नो नहीं करना, वर्किंग शो करनी है हमेशा की तरह, लेकिन छोटी क्रिस्प शॉर्ट। और अगर आपकी वर्किंग ज्यादा है तो आपको एक प्रोवाइड की जाएगी एक्स्ट्रा कंटिन्यूएशन शीट, जिसपे आप लोग दिल खोल कर वर्किंग्स करें, बुलबुले बनाएं, स्केचेस बनाएं, जो मर्जी आता है बनाएं, मैं उसको चेक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ चेक करूंगा जो पेपर मैं आपको दे रहा हूं, जो मैं आपको दे रहा हूं, इसके ऊपर जो वर्किंग है उसको चेक करूंगा, बाकी वर्किंग्स को नहीं चेक करूंगा। तो आपके स्टेप के मार्क्स आपको तब मिलेंगे सुलेमान अगर वो वर्किंग यहां पर शो हो, और अगर नहीं शो हुई तो नहीं। शो में सब शो मी द मनी। ओके, क्लियर सो फार क्लास। और हमने एक और काम भी कर दिया बाय द वे, पहले हेडर एंड फुटर होते थे, अब हेडर एंड फुटर को मैंने, जो हेडर एंड फुटर होते हैं पेजेस के, वहां पे मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया रफ वर्क, तो आप हेडर एंड फुटर के अंदर भी रफ वर्क लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको स्पेस मिल गई है थोड़ी सी और, लेकिन अगर आपको ज्यादा स्पेस चाहिए, जिस तरह इसने खूबसूरत यहां पर लिखा हुआ है इस तरह करके, और मैंने सिर्फ इस तरह लिखा है, तो मुझे तो इतना ही चाहिए, लेकिन अगर आप इस तरह की प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो आपके पास रफ वर्क की शीट है, उसके अंदर कर लीजिए। मुझे तो नहीं चाहिए ना, मुझे तो ये वर्किंग चाहिए बस इतनी, और ठीक। ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। असाइनिंग ओवरहेड कॉस्ट टू कस्टमर्स। अब मैंने प्रोडक्ट को कॉस्ट असाइन कर दी इनडायरेक्ट से, डायरेक्ट आगे जाके करें। असाइनिंग ओवरहेड कॉस्ट टू कस्टमर्स। अब मैं ये देखना चाहता हूं
कि मेरे तो कस्टमर्स बहुत सारे हैं, किसी एक कस्टमर के ऊपर मेरा कितना ओवरहेड लगता है, ठीक है? ओके, लेट्स फाइंड आउट. Let's take a look at how classic class system works for just one of the 250 customers. हमारे पास 250 टोटल कस्टमर हैं, उसमें से एक कस्टमर के ऊपर कितनी कॉस्ट लगती है वो देखना चाहता हूं. उस कस्टमर का नाम क्या है? Whitworth Yards. कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो मुझसे चीजें खरीदती है. Who placed a total of 3 orders. जिसने इस टाइम पीरियड के अंदर मुझे कितने ऑर्डर दिए? 3 ऑर्डर दिए. 3 यूनिट्स से 3 ऑर्डर. हो सकता है पहले ऑर्डर में 100 यूनिट दे दियो, दूसरे ऑर्डर में 40 यूनिट, तीसरे ऑर्डर में 10 यूनिट, व्हाटएवर इंफॉर्मेशन इज गिवन. ऑर्डर्स, 2 orders for 150 standard stanchions per hour. 2 ऑर्डर जो थे उसमें से पहले ऑर्डर में भी 150 स्टैंडर्ड स्टेंशियन, 2 प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, एक और दो, ये वाली, ठीक है, 150 पहले ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में फिर 150 ये चीज. ओके, 1 ऑर्डर फॉर अ कस्टम कंपास हाउसिंग, और एक ऑर्डर दिया इसका, और उसमें कितने यूनिट्स दिए? कितने यूनिट्स ऑर्डर किए उसने? 300. 150 होंगे नहीं वो तो सर क्यों? वो तो ऊपर स्टैंडर्ड स्टेंशियंस के. सर तो 1 ऑर्डर फॉर कस्टमर कितना? 1. कैसे पता चला? फॉर ऑर्डर तो 1 है ना, यूनिट्स कितने हैं इसमें? ठीक है. So now it has come to the extent of English, so your English will be tested as well. ठीक है, आपकी इंग्लिश भी टेस्ट होगी, तो आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को समझ सकें. ठीक है, क्लियर है सबको? इतनी आनी चाहिए. उमर, आई एम वेरी सॉरी, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए. अच्छा, इब्राहिम कह रहा है जी. इब्राहिम एक उर्दू में कुछ तो है, एक इंग्लिश में. ओके, हाँ, फिर इस तरह कर सकता हूँ, फिर इस तरह कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक, जिस तरह हमारा ये मोबाइल है, तो हम इसको यहाँ पर रखें और आपको जिस क्वेश्चन में मसला है उसकी पिक्चर लेके गूगल लेंस और यहाँ पर उसका पुश्तो का ट्रांसलेशन या उर्दू का जो भी है, ट्रांसलेट होता है. ये भी अच्छा है. ओके, क्लियर हो गया? यस नीचे मशीनर्स, 300 स्टैंडर्ड स्टेंशियंस रिक्वायर्ड 175 मशीनर्स. जो 300 यूनिट थे उसके ऊपर लगे 175 मशीनर्स. जरा वैसे आप कैलकुलेशन करें, 300 यूनिट पे कितने मशीनर्स लगने चाहिए? स्टैंडर्ड स्टेंशियन एक यूनिट कितने में बनता है, कितने टाइम में बनता है? 35 मिनट्स. 35 मिनट्स में बनता है, तो 300 कितने में बनेंगे? कैलकुलेट. 10,500 सही है. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये स्टेटमेंट बिल्कुल ना दूं तो तब भी आप फाइंड आउट कर लेंगे. लेकिन मुझे आप कर सकते हैं, देखिए अभी आपने किया नहीं, ठीक है, सिर्फ आपने डेटा दिमाग में रखना है कि डेटा क्या क्या है. ठीक है, 35 मिनट्स रखते हैं एक के ऊपर, तो 300 पे लगेंगे 35 मल्टीप्लाई बाय 300, ये आ गए मिनट्स में. इसको कन्वर्ट कर दे, डिवाइड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 300, इसको डिवाइड बाय 60, दिस विल गिव यू 1. और फिर इस 135 को मल्टीप्लाई बाय 90. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, कस्टम कंपास हाउसिंग रिक्वायर्ड, ये कितना था? 1. तो इसके ऊपर कितने लगेंगे? 2 आवर्स. याद है हमने कहा था ना कि एक कस्टम कंपास हाउसिंग पे 2 घंटे लगते हैं. इसने ऑर्डर ही 1 किया है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स 2. क्लियर? स्टार्ट करें हम? यस सर. ओके, लेट्स स्टार्ट द आंसर क्वेश्चन फर्स्ट. अच्छा, फर्स्ट वन इज कस्टमर ऑर्डर 320. किससे मल्टीप्लाई करें? किससे मल्टीप्लाई करें? 320 से पहले वाले को 2 से 300 320 से कस्टमर से नहीं एक सेकंड सर पर कस्टमर है 3 से सर. तो किसी ने 1 बोला, किसी ने 2 बोला, किसी ने 3 बोला, कोई एक तुक्का तो लग जाएगा. 3 उसामा से 3. लेकिन अलग-अलग क्यों करें? क्या मैं ऑर्डर की कॉस्ट फाइंड आउट कर रहा हूं? कस्टमर मैं क्या चीज फाइंड आउट कर रहा हूं इधर? ओवरहेड टू कस्टमर्स. एक कस्टमर, इस एक कस्टमर ने कितने ऑर्डर दिए? 3 दिए. और एक ऑर्डर पे कितनी कॉस्ट लगती है?
320 so 320 multiply by 3 जी 960 एक चीज हो गई move on to the next one 630 per product design जी सर इसके दो डिजाइन zero Shamshed says zero One, sir. वन होगा who says one वन होगा सर okay one आप नहीं है मुझे नाम याद नहीं Hafiz Hafiz says one why one answer one Umar one why one जी देखिए स्टैंडर्ड स्ट्रेंचर में कोई भी कस्टम डिजाइन नहीं होता उसको तो भूल जाए आ जाए कस्टम कंपास में कस्टम कंपास का कितना यूनिट आपने ऑर्डर किया एक तो फिर मल्टीप्लाई बाय 1 सो 630 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स 630 जी क्लियर टू ऑल ऑफ यू थर्ड 19 पर मशीन आवर्स तो मशीन आवर्स कितने हैं 175 स्टैंड के लिए और दूसरे के 175 एक प्रोडक्ट के लिए दूसरे प्रोडक्ट के लिए तो टोटल 177 जी 36,300. 3,300 60 ओके ये भी हो गया 1470 पर कस्टमर ये होगा एक ही है ना हम एक कस्टमर की बात कर रहे हैं so 1 so 1470 multiplied by 1 equals 1470 others नहीं कर सकते जीरो किस 1470 देखें इससे पहले तक हम कस्टमर्स की बात नहीं कर रहे थे प्रोडक्ट की बात कर रहे थे उसमें कस्टमर की कॉस्ट को ऐड नहीं कर सकता अब मैं कस्टमर की बात कर रहा हूं और कितने कस्टमर्स की बात कर रहा हूं एक कस्टमर ये सब कैलकुलेशन एक कस्टमर की है सो 1470 मल्टीप्लाई बाय 1 ये पर कस्टमर है 1470 पर कस्टमर 630 किस तरह है 630 किस तरह आया ओके 630 मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों किया 630 पर प्रोडक्ट डिजाइन आपने जो इसने ऑर्गेनाइजेशन ने जो आपको ऑर्डर दिया उसमें क्या क्या था उसमें 150 स्टैंडर्ड स्ट्रेंचर और 1 कस्टम कंपास अब स्टैंडर्ड स्ट्रेंचर के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन की कॉस्ट नहीं है उसको तो हटा आ जाए कस्टम कंपास एक ऑर्डर किया तो मल्टीप्लाई बाय 630 ओके फारूक 177 कैसे है 177 19 पर मशीन आवर इसने जो ऑर्डर मुझे दिया उस पे टोटल मशीन आवर्स कितने लगे 175 यहां पे लगे 2 यहां पे तो कितने हो गए टोटल हो गया 6,420. 6,420 सो नाउ आई नो कि जो विंडवर्ड यार्ड मेरा एक कस्टमर है उसके ऊपर 6,423 ओवरहेड कॉस्ट इनकर हुई जी लेट्स चेक अब वंस अगेन एक तरीका इसको यूं है प्रेजेंट करने का और एक तरीका यूं है जो मैंने किया ये मेरे पेपर के अंदर फिट आता है और अगर ये जो तरीका है इसलिए आपको कंटिन्यूएशन शीट इस्तेमाल करनी है अब आपकी मर्जी आप जो काम करते हैं ठीक है फ्री हैंड सही तो आप उस पे अगर आप रफ वर्क करना चाहते हैं इस पे कर दें और मेरे लिए ये फिगर्स भी लिख देना तो मैं आपको मार्क दूंगा लेकिन अगर आपने डायरेक्ट मुझे आंसर दिया सो आई वुड थिंक कि आपने कहीं ना कहीं से कॉपी की ठीक तो ये मत कीजिए ठीक है एंड मेक श्योर यू डबल अंडरलाइन द आंसर अगर एमसीक्यू नहीं है तो डबल अंडरलाइन द आंसर सो दैट इट्स इजी फॉर मी टू फाइंड इट आउट नहीं तो माशाल्लाह आप लोगों की राइटिंग भी बहुत खूबसूरत है ठीक है तो मुझे अक्सर नजर नहीं आता कि आपने क्या लिखा है और किधर लिखा है इसीलिए आप भी खूबसूरत सर जिसकी राइटिंग समझ में आ जाए उसको मतलब है कि एक नंबर एमसीक्यू उसको एक नंबर एक्स्ट्रा ओके लेट्स टेक 2 minutes break and then we will continue with the class 2 minutes break okay so now we are moving on to more important things cost find out कर ली अब cost के बाद let's move on to margins profit margins ठीक है
प्रोडक्ट का मार्जिन, प्रोडक्ट में मुझे कितने पैसे बचते हैं, कस्टमर का मार्जिन, मैंने एक कस्टमर के लिए कॉस्ट फाइंड आउट कर ली ना, तो मैं ये भी देख सकता हूँ ना कि ये जो विंडवर्ड यार्ड है इसने जो मुझे पैसे दिए और जो पैसे मेरे इसके ऊपर लगे उसमें से उसको हटाए तो मुझे बच जाएगा कि मैंने इस कस्टमर से कितने कमाए। दैट्स अ गुड मेजर। फिर मैं कहूंगा यार अगर इस कस्टमर से मैं ज्यादा कमाता हूं तो ये मेरा एक अच्छा कस्टमर है, इसका ख्याल रखूंगा, ठीक है, इसको हो सकता है कुछ डिस्काउंट्स भी दे दूं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं बहुत सारे काम कर सकता हूं यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट प्रोडक्ट मार्जिन एंड देन वी विल फाइंड आउट कस्टमर मार्जिन। नाउ व्हाट इज मार्जिन? मार्जिन क्या है? मार्जिन किसे बोलते हैं? डिफरेंस बिटवीन व्हाट? Between sales and cost. सेल्स एंड कॉस्ट। ओके गुड। सो सेल्स, पहले मैं सेल्स की वाली देखूंगा, इसमें से माइनस करूंगा कॉस्ट। अब नाउ टॉकिंग अबाउट कॉस्ट, यहां पे कॉस्ट कितने किस्म की है? अलग अलग नहीं, पहले मेजर कैटेगरीज दो, कौन कौन सी? Direct, Sir, indirect. DL और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखिए मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग इसकी इस जगह पर नहीं कर सकता क्योंकि यहां पे मैंने बना दिए कॉस्ट पूल्स जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आ गए और नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी आ गए, तो ये मैं नहीं कर सकता। तो मैं ये कर सकता हूं, ये डायरेक्ट कॉस्ट मैंने अब तक नहीं छेड़ा हुआ, ठीक है, ये एज इट इज पड़ी, तो मैं कहता हूं कि डायरेक्ट एज इट इज वहां से उठा लूंगा और जो इनडायरेक्ट जो मैंने एबीसी के अंदर फाइंड आउट किए वो ले लूंगा एबीसी से, ये आ जाएगा एबीसी से, ये डायरेक्ट उठा लूंगा उस जगह से इनकम स्टेटमेंट से, ये आ जाएगी कॉस्ट, सेल से माइनस करूंगा, तो मैं प्रोडक्ट वाइज भी प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकता हूं या मार्जिन, और मैं कस्टमर वाइज भी प्रॉफिट या मार्जिन फाइंड आउट कर सकता हूं। ये काम हमने करना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब तक हमने यहां पे कर लिया है, सब्सटैंशियल वर्क हैज बीन डन, सो दैट मींस यू शुड बी रेडी क्लास you should be ready for assignment in next class, और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और फिर उसके साथ अगली क्लास में क्विज के लिए भी तैयार है, उससे अगली क्लास में एक क्विज कर लेते हैं ना ताकि थोड़ा सा दिमाग काम करना शुरू कर दे। सरप्राइज